हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम. Organized crime is not something which is a recent origin. The dynamics might have changed, new crime may have been added, new methodology are adopted, but organized crime is not something which is new. In the old criminal law, that is Indian Penal Code, which has been replaced by Bharatiya Nyaya Sanhita, there was a provision under section 310, Thuggy. Thuggy was one of the gravest form of organized crime. Now that is removed from Indian Penal Code because that type of crime is not happening now. Thuggy is happening, new form of Thuggy is happening, but that Thuggy was entirely different, where a group of people used to take rich people or any other person who has some money, property, and in a group, after making some planning, after robbing, they always kill the person. And therefore, in that case, 310 also contained capital punishment. उसे ठगी कहते थे उस समय. ठगी का मतलब सामान्य रूप से केवल ठग देना नहीं है. उस समय ठगी एक बहुत ही जघन्य किस्म का अपराध हुआ करता था जिसमें कि लोगों को मार दिया जाता था. कुछ ग्रुप था वो प्रॉपर्टी के लिए लोगों को मार देते थे. सो 1860 में ही ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का एक रिकॉग्निशन था और उसके लिए बहुत ही कठोर पनिशमेंट था. जो हार्शेस्ट पनिशमेंट हो सकता वो पनिशमेंट था. ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से या ऑर्गेनाइज्ड होकर जब लोग काम करते हैं, देखिए हम लोग क्या है, वी नो दैट द क्राइम इज कमिटेड. इट कैन बी कमिटेड इंडिविजुअली, इट कैन बी कमिटेड jointly. When it is jointly committed, then there is additional force. अकेले हम शायद कोई काम ना करें, पर ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अगर हम ज्वाइंट में हैं तो जो एक बहुत कमजोर व्यक्ति होता है वो भी ताकत महसूस करता है. He also understands that he is very powerful. So that is the nature of an organized group, that a small person feels empowered and sometimes takes that decision which he individually cannot take. So this is one reason why organized crime is taken more seriously. Indian Penal Code used to address it through various other principles like joint liability principle under section 34 of IPC, section 149, which was not only a principle but also uh, uh, also an offense itself. 149, conspiracy, abatement, they all are joint liability and they have been made there to deal with those cases where more than one persons are involved in committing crime. So there was an idea to deal with organized crime where people organize. When we say organize, that definitely means that prior to offense there is some concert, some planning, something is happening. Target probably is decided, methodology is decided, role of the people are decided, and that is why with the help of 34, 149, 120, 107 of IPC and many other offences, uh, joint activity has been addressed. But it was found
that Indian Penal Code is itself not sufficient because of various reasons. One reason was that the requirement of mens rea element, which is many times very difficult to prove. We all know mens rea means guilty mind, that something is done intentionally or knowingly or with reasons to believe. Second reason was that the procedure, uh, for example, bail procedure, so they were normal bail procedures. The courts were not specialized. The courts were not very much aware of what type of crime is it. So therefore new law came in. And one of the modern law was very well known Maharashtra Control of Organized Crime Act. Prior to that also there were other laws, but Maharashtra Control of Organized Crime Act became a model type of law to specifically deal with organized crime, though those crimes were somewhere addressed by Indian Penal Code itself. There various other states also passed various laws, but basic purpose to pass these laws was to deal with these type of crimes with far more sophisticated and well equipped hand. So take example of courts. There are Makoka courts. Makoka courts means courts that exclusively deal with Makoka cases, and it is expected that the court will be aware of the methodology, modes, nuances of organized crime. Public prosecutor, special public prosecutor for Makoka purposes. Then special provisions for bail, because in normal CRPC 2-3 requirements are there, then you can get bail. But in Makoka special provisions were made so that people do not get bail easily. Then punishment, minimum punishment were incorporated. In Indian Penal Code, punishment was already there, and sometimes harsh punishment was there, but there was no minimum punishment. So sometimes discretion of the court went to the extent that very less punishment was given. Due to these reasons, new law came in, Maharashtra Control of Organized Crime, and similarly other laws were made in various states, Tamil Nadu, Bihar. Some laws were prior to that also. At international level also there were development, like 2000 Transnational Organized Crime Convention came in. That also required transnational organized crime, that the laws should be as per the requirement of the society. So if the law is weaker, that law should be made more stronger. The convention itself defines organized crime group. For example, take example of Article 2 of the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime. They define organized crime criminal group. It says that organized criminal group is a structured group of 3 or more persons. It says that 3 or more persons are required. We will today see that organized crime is defined under this: 2 persons are required. Here 3 persons are required minimum, which says existing for a period of time and acting in concert with the aim of committing one or more serious crime or offences established in accordance with this convention. So organized criminal group means 3 persons for the purpose of United Nations Convention, 3 persons, and then they are not just making one crime, but for last few times they are doing it. They are doing in concert. You remember when we use the word concert, common intention, common object word automatically comes in. They do it directly or indirectly for financial benefit or other benefit. Word used here in convention is serious crime. Serious crime means any offense for the purpose of convention, at least 4 years penalty is there.
At least 4 year penalty is there. So uh, this minimum punishment of 4 years is required in the convention itself. Then Article 2 of C, that talks about a structured group. I'm not dealing with that. D talks about United Nations Convention I'm discussing, talks about property. And this convention becomes more important because organized crime or trans means borderless crime these days. Property includes any type of property, tangible, either movable, immovable, improbable. 2E talks about proceeds of crime. So any property which is derived from or obtained from through commission of an offence. We will see that in current Bharatiya Nyaya Sanhita, proceeds of crime have been incorporated. Then the provision for administrative provisions like freezing and seizure of the properties, confiscation, predicate offences, these are indeed in 2000 convention, these are mentioned. So in context of these new laws were required, we had made in maybe at state level, Makoka was made, which is also applicable to Delhi. Uh, then it requires that the state parties must make their law in such a fashion that uh, it is in conformity with this convention. It also says under Article 6 that the states need to criminalize laundering of proceeds of crime. So we see that 2002 Money Laundering Act came in. Prior Excuse me, sir. Prior to that also laundering was an offense, but Money Laundering Act especially came. So we can find this is the impact of international convention like 2000 convention on India, while prior to this convention in 1999 at the state level we have addressed through Makoka at the state level. In 2002 we came up with uh, Money Laundering Act, which is also a type of organized crime. Excuse me, sir. Yes, Sorry to interrupt you, sir. yes. Sir, actually, your PPT is not seen No, no, on I'm the not. screen, sir. It is just an introductory remark. Okay, fine, sir, It is fine. just an Please continue. introductory remark. I will come to that PPT. So Right, sir. I'm just conveying that this convention, how means these are the conventions. Sometimes the question is asked why, when we already have Indian Penal Code, why do we need to make uh, laws like new laws like why did we make? So the whole point is that while states are competent to make laws, uh, criminal law itself is a matter of concurrent list, but the central law is made uh, not because center wants more power, but it is the international requirement also. So under convention, it is a requirement that we make a strong law. So that is the first background that I wanted to make. कि why these type of new laws like take example of 2002 Money Laundering Act to 2023 incorporation of organized crime under Bharatiya Nyaya Sanhita. The main reason is because it is the requirement of the convention, international conventions, that we make a stronger law which is uniformly applicable. So now I come to this PPT, and I shall focus mainly on Bharatiya Nyaya Sanhita because it is new one. It is new one, and uh, संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को संगठित अपराध कहते हैं, हम सब जानते हैं. So we can begin with this slide, and I think now the slide is very much visible. If we go in the history, Hitopadesh, it identifies the reasons of these type of crimes, indeed every crime, and here lies the solution to all these crimes. It says that
इट इज़ द ग्रीड दैट इन्फ्लुएंसेस एंगर. लालच जो है हमें गुस्सा भरता है. ग्रीड बिगेट्स डिजायर. लालच जो है हमारे अंदर इच्छाएं भरता है. एंड फ्रॉम ग्रीड कम्स डिल्यूजन. जो लालच होता है हमारे अंदर डिल्यूजन पैदा करता है. एंड डिस्ट्रक्शन ऑल्सो, हमारे अंदर डिस्ट्रक्शन ही पैदा करता है. एंड ग्रीड इज द रूट कॉज ऑफ पाप. जो लालच है वो पाप का, हर पाप का कारण है. सो इट इज ए कॉमन सेंस टाइप थिंग, बट आवर एंशियंट लिटरेचर्स have identified that the main reason is greed, and therefore they have tried to address this problem of greed. Now, Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, earlier it was Indian Penal Code. Indian Penal Code was changed to Bharatiya Nyaya Sanhita 2023. Indian Penal Code did not recognize uh, organized crime with the name. Of course, it did recognize with one name or other name, but did not recognize with this name. So it was incorporated under section 111 as an organized crime and 112 as an organized crime, petty organized crime. Section 111 has 7 clause. Section 111 clause 1 contains 3 explanation. 1112 contains punishment, and rest of the clause, for example 3, 4, 5, 6, 7, they deal with abatement, proceeds, membership crime and other data we are going to discuss. Now let us begin with some difference between petty organized crime and organized crime initially. And see, when we say petty organized crime, we never mean petty in the sense of CRPC. In CRPC, there is a concept of petty offenses, petty cases. Those cases have no link with petty organized crime. Let us be very clear. Petty cases are those cases which have only fine as a punishment, where summary trial takes place under CRPC, where no charge sheet is formally framed, natural justice is not always required to be followed, and some fine is imposed on. So these type of things are petty cases. But when we talk about 112 section 112 petty organized crime, जब हम 112 में पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात कहते हैं, इसका कहीं से अर्थ नहीं है कि ये छोटा अपराध है, क्योंकि हम देखेंगे कि इसमें भी पनिशमेंट बहुत ज़्यादा है. अंतर इतना किया गया है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में वायलेंस का एलिमेंट है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में कोअर्शन का एलिमेंट है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में थ्रेट का एलिमेंट है, पर पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में कोई थ्रेट का एलिमेंट नहीं है. और इस प्रकार इसको अंतर इस प्रकार का किया गया है. आइए देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है. इसकी डेफिनेशन में जो भारतीय न्याय संहिता में जो डेफिनेशन दिया गया है, ये डेफिनेशन क्या कहता है. ये बड़ा डेफिनेशन है, लेकिन हम इसकी इसमें जाते हैं, इसकी एनालिसिस करना शुरू करते हैं. ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मतलब हो गया एनी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी. पहला जो हमें साबित करना है कि अनलॉफुल एक्टिविटी हो. अनलॉफुल एक्टिविटी का मतलब हो गया कोई भी एक्टिविटी जिसको लॉ ने परमिट नहीं किया है, दैट इज अनलॉफुल एक्टिविटी. अनलॉफुल एक्टिविटी और इमोरल एक्टिविटी में हमको अंतर ध्यान रखना है. इमोरल एक्टिविटी हो सकती है, कोई चीज़ इमोरल एक्टिविटी हो, लेकिन वो अनलॉफुल है कि नहीं ये लॉ डिसाइड करेगा. इमोरल है कि नहीं ये सोसाइटी डिसाइड करेगी. ऐसा हो सकता है कि बहुत ही बुरा काम हो, बहुत ही बुरा, लेकिन हो सकता है कि वो अनलॉफुल ना हो. तो ये ध्यान है. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. मान लीजिए कि 18 साल के 19 साल के दो लोग आपस में साथ रहना शुरू कर देते हैं, तो इमोरल एक्टिविटी इसको मानते हैं. लेकिन अगर वो साथ रह रहे हैं बिना किसी दबाव के रह रहे हैं, 18 साल उम्र ही केवल है, तो ये अनलॉफुल नहीं है. आप देखिए, वो अगर शादी कर ले तो अनलॉफुल हो जाएगा, पर अगर साथ रहेंगे तो अनलॉफुल नहीं हो. तो हमें पहले ये ध्यान रखना है कि क्या वो एक्टिविटी अनलॉफुल है. जस्ट बिकॉज वो इमोरल है, वो इमोरलिटी और अनलॉफुलनेस में हमें अंतर ध्यान रखना है. दूसरा इसमें है, इज इट ए कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी. इफ आई फाइंड सम अनलॉफुल एक्टिविटी इज गोइंग ऑन
इज इट ए कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी? हम लोगों ने देखा है कि किस प्रकार जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन है ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का 2000, उसमें भी ये बात कही गई है कि कुछ समय से चल रहा हो, कोई पहली बार अपराध हुआ हो, उसको हम अचानक कंटिन्यूइंग नहीं कह सकते। हमें कोई एविडेंस दिखाना होगा कि पहले से वो चल रहा है, कुछ न कुछ पहले से कुछ बातें हुई है उसमें, पहले भी इस तरह के अपराध लगातार हो रहे हैं इस व्यक्ति या इस ग्रुप के द्वारा। तो ये हो गया कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी। तो पहला तत्व हमारा हो गया कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी। हम देखेंगे कि कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी जो है ये जो है पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में ये थोड़ा सा ये अंतर करेगा इसमें, इस पॉइंट पर भी। अब कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी क्या क्या हो सकती है, 11 उदाहरण गिना दिए गए हैं। 11 इलस्ट्रेशंस हैव बीन गिवन। 11 एग्जाम्पल्स दे दिए गए हैं सेक्शन में ही, लेकिन इसके अलावा भी हो सकती है क्योंकि इंक्लूडिंग वर्ड यूज हुआ है। 11 क्या क्या है? कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी किस प्रकार की? किडनैपिंग, किसी का जो है अपहरण कर लेते हैं। किडनैपिंग वर्ड जो यूज हुआ है केवल किड के कंटेक्स्ट में नहीं है, वो बड़े आदमी का अपहरण होगा तो वो भी किडनैपिंग की किस कैटेगरी में आएगा? किडनैपिंग, रॉबरी, लूट कर रहे हैं, कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी लूट। व्हीकल थेफ्ट, कोई व्हीकल चुरा ले रहे हैं। अब देखिए जो किडनैपिंग है और रॉबरी है, इसमें वायलेंस का एलिमेंट है एसेंशियली, क्योंकि उसकी इच्छा के बिना उसको ले जाया जाता है, उसको धोखा दे के ले जाया जाता है, उसकी इच्छा के बिना उसके साथ कोर्सन किया जाता है और तब ले जाया जाता है। रॉबरी में भी यही होता है। व्हीकल थेफ्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि चुपके से भी हो सकती है, हो सकता है उसमें वायलेंस का एलिमेंट उस तरह का डायरेक्टली ना हो। एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन में हमेशा ही भय का एलिमेंट होता है, 3-4 लोग मिलकर एक्सटॉर्शन कर रहे हैं। लैंड ग्रैबिंग, किसी की जमीन पे कब्जा कर लिया, हो सकता है उस व्यक्ति को, तो लैंड ग्रैबिंग एक है ऑफेंस जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का एक पार्ट है। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, वायलेंस का एलिमेंट, एसेंशियली वायलेंस का एलिमेंट, इसे सुपारी लेकर मार देना। इकोनॉमिक ऑफेंस, इकोनॉमिक ऑफेंस हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन भी दी गई है, कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी की भी आगे डेफिनेशन दी गई है। इकोनॉमिक ऑफेंस जो है वो मनी ट्रांजैक्शन से जुड़े हुए ऑफेंसेस हैं, उसका क्या माने हम देखेंगे आगे। साइबर क्राइम्स, साइबर क्राइम बहुत बड़ा एक मतलब नेट है, बहुत बड़ा नेट है साइबर क्राइम, वो पूरा इंक्लूड किया गया है। साइबर क्राइम में ध्यान रखना है, कुछ साइबर क्राइम वायलेंट हो सकते हैं, कुछ साइबर क्राइम नॉन वायलेंट हो सकते हैं। वायलेंट इन द सेंस कुछ साइबर क्राइम ऐसे हो सकते हैं जिसमें एक्सटॉर्शन हो, जिसमें कि डराया गया हो, धमकाया गया हो ऐसे, और कुछ साइबर क्राइम ऐसे हो कि आपको पता ही ना चला, आपने 3-4-5 दिन बाद बैंक अकाउंट देखा, आपने देखा कि भाई मेरा तो पैसा ही चला गया है। दूसरा तरीका ये है कि आपको धमकी दी गई, झूठी धमकी दी गई कि आपके खिलाफ जो है कोई वारंट निकल आया है बम्बई पुलिस से, कोर्ट का भी कुछ ऑर्डर दिखा दिया गया, डर के मारे आपने पैसा दे दिया। ये 2 तरह के साइबर क्राइम हो गए। तो साइबर क्राइम। ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन्स, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन्स जो है उसमें भी कई मामलों में उसमें देयर इज एन एलिमेंट ऑफ कोअर्शन। ड्रग्स, weapons और illicit goods और services, somebody is engaged in drug trafficking, weapons की ट्रैफिकिंग, illicit good और services की ट्रैफिकिंग में, एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग फॉर प्रोस्टिट्यूशन और रैंसम। ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सनस में तो ये ऑलरेडी कवर्ड है, पर अलग से बता दिया गया है 11वें में कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है फॉर प्रोस्टिट्यूशन और रैंसम। तो अगर ट्रैफिकिंग केवल कर रहे हैं वो तो इंक्लूडेड है ही, पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो प्रोस्टिट्यूशन के लिए हो रहा है, रैंसम के लिए हो रहा है, वो अलग से इसमें एक्सप्रेसली इंक्लूड कर दिया गया है। इतनी काम की जाती है, कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी ये हो रही है, इनमें से कोई भी एक हो रही हो, किसके द्वारा? बाई एनी पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स, किसी एक व्यक्ति द्वारा हो या कई व्यक्तियों द्वारा हो। एक्टिंग इन कंसर्ट, वो कंसर्ट में कर रहे हो, मिल के कर रहे हो, 2 लोग मिले हो, 2 लोग बम्बई में हो, 2 लोग कलकत्ते में हो, 2 लोग बेंगलुरु में हो, जरूरी नहीं है कि सब आपस में एक दूसरे को जानते हो, कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन उनका पर्पस एक है, उनको आइडिया है, उनको पता है कि उनको क्या ऑफेंस करना है, कौन सा काम उन्हें करना है, कौन सी लीगल एक्टिविटी उनको करनी है। तो एक्टिंग इन कंसर्ट, तो प्रोसिक्यूशन के लेवल पर यह साबित करना थोड़ा जरूरी होता है कि ये जो काम हुआ है ये कंसर्ट में हुआ है, मिलजुल के ये काम हुआ है। सो ये एक ऐसा एविडेंस है जो कई बार नहीं मिल पाता, इसलिए जो लोग इसमें लगे हैं प्रोसिक्यूशन में, दे शुड टेक इट
वेरी क्लियरली, वेरी। सो टेक एग्जाम्पल, अंडर सेक्शन 34 में हम कॉमन इंटेंशन प्रूव करते हैं, सेक्शन 149 में हम कॉमन ऑब्जेक्ट प्रूव करते हैं। एक्टिंग इन कंसर्ट में हमें कॉमन इंटेंशन या कॉमन ऑब्जेक्ट, इंटेंशन या नॉलेज हमको जो है इसको प्रूव करना पड़ेगा। हेलो, सॉरी। सो मैं ये कह रहा था कि एक्टिंग इन कंसर्ट जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। हमने अगर उनके बीच का कंसर्ट नहीं दिखा पाए हम, तो मुश्किल होगी। हमें लोगों के बीच का कंसर्ट दिखाना है, लेकिन ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि ए बी को जानता था। कोई आवश्यक नहीं है कि ए बी को जानता था, पर उनके काम को जानता था, उनसे किसी तरह जुड़ा हुआ था, ये आवश्यक है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं आपको पूरी तरह से नहीं जानता हूँ, लेकिन हम आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये कंसर्ट दिखाना, ये एविडेंस हमारे पास होना चाहिए। वो व्यक्ति सिंगली काम करे, ज्वाइंटली करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्वाइंटली, ये ज्वाइंट एक्टिविटी तो है, ये ऑर्गेनाइज क्राइम तो है, पर एक सिंगल आदमी भी कर सकता है। किसी ग्रुप के, कोई ग्रुप है कहीं बम्बई में बैठा हुआ है कोई ग्रुप, और उसको बोकारो में काम करना है। वो जो है कोई व्यक्ति कोई गुवाहाटी में बैठा हुआ है और उसको जो है जामनगर में कुछ करना है। हाँ, तो ये सिंगली और ज्वाइंटली हो सकता है। आइदर एज ए मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट, हो सकता है कि वो मेंबर हो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट का, या उसके बिहाफ पे किया कर रहा हो। जरूरी नहीं है कि उस ग्रुप का मेंबर हो। ये बहुत ही ब्रॉड डेफिनेशन रखा गया है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें पता है कि ये 5-6 लोग इस ग्रुप के मेंबर हैं, इनका काम ही है जगह जगह जा जाकर चोरी करना। हम उस ग्रुप के मेंबर नहीं हैं, लेकिन उनके बिहाफ पे हम कुछ हेल्प करते हैं उनके, तो माई एक्टिविटी विल ऑल्सो बी कंसिडर ऑर्गेनाइज क्राइम। काफ़ी ब्रॉड रखा है इसको, ऑन बिहाफ ऑफ सच सिंडिकेट बाई यूज ऑफ वायलेंस। मैंने पहले भी आपसे कहा कि पेट्टी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में एक फ़र्क ये है कि यहाँ पर वायलेंस, थ्रेट ऑफ वायलेंस, इंटिमिडेशन, कोअर्शन या कोई और अनलॉफुल मीन्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण कि डर के मारे हम ये काम, या दबाव में हम आकर के ये काम करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। टू ऑब्टेन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल बेनिफिट, कुछ आर्थिक लाभ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम आर्थिक लाभ, मटेरियल बेनिफिट, आर्थिक लाभ का मतलब केवल धन पैसा ही नहीं है, कुछ हम मटेरियल बेनिफिट किसी प्रकार का हो सकता है वो। ठीक है, पोजीशन चेंज करनी हो सकती है किसी की, कुछ, तो इट इज़ नॉट डायरेक्टली मनी रिलेटेड। नॉन मनी रिलेटेड थिंग कैन ऑल्सो बी ए पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। सो शैल कंस्टिट्यूट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो ये डेफिनेशन दी गई है। सो एक बार फिर से देख लेते हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट हो गया continuing unlawful activity. This is one thing which we have to establish, but always take care. There can be something which is completely immoral, we may not like, you may not like, but ये unlawful activity नहीं है, number 2, it must be continuing, there must be an evidence of continuing. Third, 11 एक्टिविटी बता दी गई है, पर 11 तक लिमिटेड नहीं है, नई एक्टिविटी शामिल हो सकती है, क्योंकि इंक्लूडिंग वर्ड यूज हुआ है, इंक्लूडिंग वर्ड यूज हुआ है। अगर यहाँ मीन्स वर्ड यूज होता तो इसका मतलब होता है 11 ही एक्टिविटी, लेकिन चूंकि यहाँ इंक्लूडिंग वर्ड यूज हुआ है, देयरफॉर इट मीन्स इन 11 के अलावा भी कुछ हो सकता है। लेकिन क्रिमिनल लॉ में ध्यान रखना है कि हमको इस 11 में ही ले आए तो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज कोर्ट्स में जो है ये चीज़ें बहुत इस्टेब्लिश नहीं हो पाती। एक व्यक्ति करे, कंसर्ट में करे आवश्यक है, और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की ओर से कर ले, इतना ही काफ़ी है, वायलेंस का यूज़ करता हो, और कोई मटेरियल बेनिफिट जो है वो पाने के लिए करता है, ये हम कहते हैं कि ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। आते हैं एक्सप्लेनेशन पर। मैंने आपसे निवेदन किया था कि 3 एक्सप्लेनेशन है, ये 3 एक्सप्लेनेशन 3 शब्दों को एड्रेस करते हैं। ये 3 शब्द यहाँ बताए गए हैं। पहला हो गया कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी, दूसरा हो गया इकोनॉमिक क्राइम। अभी देखिए आते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट का क्या मतलब है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट का मतलब है, आप देखेंगे डेफिनेशन में, ये डेफिनेशन में पार्ट है कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी, इकोनॉमिक ऑफेंसेस और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट। ये 3 पार्ट है, इसको एक्सप्लेन किया गया है, नया जो लॉ 2023 का आया है, अच्छी बात है। क्या है इसका मतलब? 111 के एक्सप्लेनेशन एक देखिए। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट मीन्स 2 or more persons,
2 लोग काफ़ी है। ये जो हमारा क्लासिकल लॉ था आईपीसी, वहाँ भी कहा गया ऑर्गेनाइज्ड क्राइम 2 लोगों से हो जाता है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वर्ड हैज़ नॉट बीन यूज्ड, बट 34 सेक्शन 34 के थ्रू जब आप किसी के ऊपर प्रोसिक्यूशन करते हैं कि 2 लोगों ने मिलकर कहीं चोरी की है, लूट किया है, तो ये 2 लोग काफ़ी होते हैं सेक्शन 34 में। तो यहाँ 2 लोग काफ़ी हैं, 2 और मोर पर्सन्स एक्टिंग आइदर सिंगली और जॉइंटली एज ए सिंडिकेट और ग्रुप, गैंग के रूप में काम कर रहा है, ग्रुप के रूप में काम कर रहा है। इंडल्ज इन एनी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी, वो किसी भी लगातार जो अनलॉफुल एक्टिविटी हो रही है उसके साथ वो उसमें इंडल्ज है, उसमें शामिल है। तो ये हो गया ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट। सो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट के लिए हमें जो इस्टेब्लिश करना है, वो इस्टेब्लिश करना है कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं, नंबर 1, वे साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, साथ में मिले हुए हैं और अकेले या अलग अलग काम कर रहे हैं एक सिंडिकेट, एक गैंग के रूप में, और एक्टिविटी कंटिन्यूइंग है, लंबे समय से वो एक्टिविटी चल रही है। यस, Hello, good afternoon, sir. अभी My बात, name is Swati नो Gauri. नो I'm नो calling from Amity Hospital. नो, I will talk after maybe 1 hour. Okay. Now, uh, we have dealt with what organized crime syndicate means. There is another word that is continuing unlawful activity. This has been defined also by the parliament. It has, maybe we can dissect it, 8 elements hai. An activity prohibited by law. We have to see if law has prohibited it or not. If law has not prohibited, हम कुछ नहीं कर सकते. Law has to prohibit it. Number 1. It has to be a cognizable offense. So we all know that non-cognizable offenses, they are also prohibited, but non-cognizable offenses will not come in this. It has to be cognizable offense. और जैसा कि हम सब जानते हैं, CRPC में लास्ट में सबसे आखिरी में शेड्यूल बना हुआ है, उस शेड्यूल में कौन से कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कौन से नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उनकी लिस्ट दे दी गई है। हमें कोई अटकलबाजी नहीं करनी, हमें कोई गेस वर्क नहीं करना है। नाउ इन भारतीय न्याय संहिता कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए लास्ट में शेड्यूल्स में एक सूची दे दी गई है। वी हैव टू सी दैट एज मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट के मेंबर के रूप में, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट क्या है ये देखिए, हम देख सकते हैं 2 या 2 से ज़्यादा लोग हों, एक साथ या जॉइंटली करें, सिंडिकेट एक गैंग के रूप में किसी भी कंटिन्यू अनलॉफुल एक्टिविटी में एंगेज्ड हो, मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट, और ऑन बिहाफ ऑफ सच सिंडिकेट, या तो उनके बिहाफ में काम करें, इन रेस्पेक्ट ऑफ विच मोर देन वन चार्जशीट हैव बीन फाइल्ड बिफोर ए कॉम्पिटेंट कोर्ट। एक आइडेंटिफाई करने का तरीका दिया गया है। ऐसे लोग हैं जिनको कम से कम एक चार्जशीट फाइल की गई है लास्ट 10 ईयर्स में, लास्ट 10 ईयर्स में उनके बारे में कोई चार्जशीट फाइल की गई है, अनलॉफुल कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी के डेफिनेशन के लिए आवश्यक है। विद इन द प्रेसीडिंग पीरियड दैट कोर्ट हैज टेकन कॉग्निजेंस ऑफ सच ऑफेंस, और ऐसे ऑफेंस का कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया है, और इसमें इकोनॉमिक ऑफेंसेस भी शामिल है। तो हम देख सकते हैं कि कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है कि कोई भी एक्टिविटी जो पहली बार कर रहा है, बहुत ही सीरियस हो सकती है। तो पहली बार करने वाले को हम ऑटोमेटिक कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं कहेंगे, और कम से कम 10 साल में एक चार्जशीट उसकी शामिल की गई हो, चार्जशीट उसके अगेंस्ट में आई हो, और वो मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट है, कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए उसने कोई उससे जुड़ा कोई प्रोहिबिटेड कोई ऐसा काम किया हो जो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं यह है कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी। थर्ड एक्सप्लेनेशन, लास्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 1 इज सेक्शन 111 क्लॉज 1 इज इकोनॉमिक ऑफेंस। नाउ इकोनॉमिक ऑफेंस क्या है, इसको देख लेते हैं अलग से। इकोनॉमिक ऑफेंस को बता दिया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इसमें शामिल है, फॉर्जरी शामिल है, काउंटर फीटिंग ऑफ करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स और गवर्नमेंट स्टैम्प्स इसमें शामिल हैं। तो आप क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करते हैं, मतलब आपको भरोसा किया गया है, आपको पैसा दिया गया है, उस पैसे का दुरुपयोग कर लेते हैं, सही जगह यूज़ नहीं करते। फॉर्जरी, धोखा देते हैं,
जालसाजी करते हैं। काउंटर फिटिंग ऑफ करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स और गवर्नमेंट स्टैम्प्स। आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं और आप करेंसी नोट बना ले रहे हैं, या बैंक के नोट्स जो है वो काउंटर फिटिंग है, या गवर्नमेंट के स्टाम्प्स जो है वो काउंटर फिटिंग या जो गलत है वो बना ले रहे हैं। हवाला ट्रांजैक्शन, मास मार्केटिंग फ्रॉड। मास मार्केटिंग फ्रॉड का मतलब हो गया कि लोग जो है पूरा ट्रांजैक्शन ही फ्रॉड के पर्पस के लिए कर रहा है, कोई ये जेन्युइन ट्रांजैक्शन नहीं है कि आइए आप हमारे यहाँ बैंक अकाउंट में बैंक अकाउंट में जो है मेरे बैंक अकाउंट खुलवाइए, या आप जो है आइए हमसे आके कपड़े खरीदिए। नहीं, मास मार्केटिंग फ्रॉड, द होल पर्पस इज टू कमिट फ्रॉड। रनिंग एनी स्कीम टू डिफ्रॉड सेवरल पर्सन्स, ऐसी स्कीम चला रहे हैं जिससे एक से ज़्यादा लोग उसमें डिफ्रॉड होंगे, उनके साथ धोखा होगा। देन running any scheme, yes, doing any act in any manner with a view to defraud any bank, financial institution or any other institution or organization। ये इंस्टीट्यूशन के लिए कहा गया है कोई ऐसा काम हो जिसके द्वारा कि आप बैंक को धोखा दें, आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को धोखा दें, या एनी अदर इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन को आप धोखा देते हैं, ऐसा सब काम करते हैं, तो ऐसे मामलों में हम कहेंगे कि इकोनॉमिक ऑफेंस हुआ ये ऐसा क्यों हो? फॉर ऑब्टेनिंग मॉनिटरी बेनिफिट इन एनी फॉर्म, किसी न किसी रूप में हम उस पर कोई मॉनिटरी बेनिफिट हमें मिलना चाहिए। दिस इकोनॉमिक ऑफेंस। नौ इकोनॉमिक ऑफेंस के लिए अब हमें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक ऑफेंस जो है उसको बता दिया गया है कि ये कैटेगरी की चीज़ें जो होगी ये इकोनॉमिक ऑफेंस की कैटेगरी में आएंगी। लेकिन अन्य किसी विधि में अगर इकोनॉमिक ऑफेंस को उस तरह डिफाइन किया गया, अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, तो उस विधि में जो कानून है, जो डिफिनेशन है, वो विधि लागू होगी। नाउ पनिशमेंट क्या है ये देखते हैं। Whoever commits organized crime, जो भी ऑर्गेनाइज क्राइम करेगा, क्या पनिशमेंट है? यदि उसके कारण डेथ हो गई है तो डेथ पनिशमेंट मिलेगा। तो मान लीजिए हम किडनैपिंग कर रहे हैं, 4-5-6 लोग हैं, किडनैपिंग करके ले जाना चाहते हैं उसको, उससे ताकि उससे उसके परिवार के लोगों से पैसा वसूले, ठीक है, और इस क्रम में उसकी डेथ हो जाती है, हमारी घटना के कारण कोई डेथ हो गई है, तो डेथ पनिशमेंट मिलने का इसमें प्रावधान किया गया है। पहले ये प्रावधान जनरली ये प्रावधान इस तरह का नहीं था, और सेपरेट जो है प्रोविजन 302 में मुकदमा करना होता था, जो कि हमेशा ही आसान काम नहीं होता साबित करना। डेथ हो गई तो डेथ हो सकता है, मर्डर डेथ पनिशमेंट हो सकता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी मिल सकती है, या लेस देन 10 लाख फाइन, कम से कम 10 लाख रुपए तक का फाइन उसमें इम्पोज किया जाएगा। ये हो गई डेथ की बात। अब ये जो बोले रिजल्टेड इन डेथ, रिजल्टेड इन डेथ का मतलब ये नहीं है कि पूरी स्कीम में या इस तरह की काम करते हुए कोई भी डेथ हो जाए तो उसके लिए डेथ पनिशमेंट दे देंगे। डेथ पनिशमेंट इज नॉट मेड फॉर दिस। अब जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को उसके साथ धोखा हो गया, और धोखा होने के कारण उसे जो है उसे शॉक लग गया, और शॉक लगने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, तो इसको थोड़ा सा इस्टेब्लिश कर पाना कठिन काम है कि क्रिमिनल लॉ में इसके बीच में आपस में कोई प्रॉक्सिमेट संबंध है। हो सकता है कि जज है वो कहे कि नहीं नहीं, ये जो है भाई हार्ट अटैक उसका हो गया है, हार्ट अटैक का इससे कोई लिंक नहीं है, ठीक है। तो ऐसे मामलों में, ऐसे मामले जिसमें डेथ, जैसे कि मैं देखूं, मैं वापस ले चलता हूं आपको वहां, रॉबरी करते हुए कोई डेथ हो गई तो मर्डर का केस तो चलेगा ही चलेगा, पर इस केस में भी डेथ पनिशमेंट हो सकती है। एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, लैंड ग्रैबिंग कर रहे हैं, ठीक है, और इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं, और साइबर क्राइम्स है, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन्स है, इसको दौरान किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, तो ऐसे मामलों में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फिक्स करने का प्रयास किया गया है। नाउ दूसरी कैटेगरी क्या है? इन एनी अदर केसेस, ऐसे मामले में जहां की डेथ हो गई है किसी की, वहां आप उसको डेथ सेंटेंस भी दे सकते हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी इसको दे सकते हैं, और साथ में 10 लाख तक फाइन लगाएंगे। लेकिन जो मामले इसकी कैटेगरी में नहीं आते, अलग कैटेगरी के हैं, इन एनी अदर केस
इम्प्रिजनमेंट कितना होगा? कम से कम 5 साल का होगा, कम से कम 5 साल का होगा इम्प्रिजनमेंट। लेकिन वो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक भी हम दे सकते हैं, 5 से लेकर वो 10 साल, 15 साल, 20 साल, यहाँ तक कि जीवन भर उसको कारावास में रहना पड़ सकता है। और उसके साथ साथ जो फाइन की गई है वो भी बहुत हैवी फाइन की गई है, 5 लाख रुपीज़ का इसमें फाइन किया गया है। थर्ड जो कैटेगरी है इसकी, सेक्शन 111 क्लॉज 3, ये जो है इनकोएट ऑफेंसेस के बारे में बताता है। इनकोएट ऑफेंसेस का मतलब होता है ऐसे ऑफेंस जो अपने प्रिलिमिनरी रूप में ही है, अपने प्राथमिक रूप में ही ऐसे ऑफेंसेस हैं जो अभी पूरे कंप्लीट नहीं हुए हैं। जैसे प्लानिंग किया कुछ करने का, किसी को उकसा दिया, ये सब अभी ऑफेंस कंप्लीट नहीं हुए हैं, इसको अलग से पनिश किया गया है। किस प्रकार पनिश किया गया इसको देख लें। इसे 111 के क्लॉज 3 में कहा गया है जो कोई एबेटमेंट करता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का, एबेटमेंट का मतलब था उकसाना, अटेम्प्ट करता है, अटेम्प्ट का मतलब कि अपराध करना चाहते थे, किसी कारण से नहीं कर पाए या किए और वो कंप्लीट नहीं हुआ। 3 हो गया कंस्पायर्स, जो व्यक्ति सहमत होता है ऐसे अपराध करने के लिए, वहीं देन एंड देयर विदाउट डूइंग एनीथिंग, दिस इज पनिशेबल, कंस्पायर्स। और नोइंगली फैसिलिटी, ये देखिए ये यहाँ मेंसरी एलिमेंट यूज हुआ है, नोइंगली फैसिलिटेट, उस व्यक्ति को जो व्यक्ति जो है एबेटमेंट, जो व्यक्ति काम कर रहा है वह हो सकता है कि उसको सहयोग करे, जैसे वो एबेटमेंट ना करे, वो अटेम्प्ट भी ना करे, वो कंस्पायर भी ना करे। मैं एग्जांपल देता हूँ, और ये एग्जांपल बहुत ही फेमस एग्जांपल है। एक आदमी क्या करता है कि चोरों का ग्रुप है, वो चोरी करना चाहता है एक आदमी के घर में। रात में जो व्यक्ति सहयोग करना चाहता है उनको, वो दरवाज़ा की कुंडी खोल देता है, बस इतना ही करता है, वो कुछ नहीं करता है, ताकि आसानी से चोरी हो जाए। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो व्यक्ति एबेटमेंट उस तरह नहीं कर रहा है, डायरेक्टली अटेम्प्ट नहीं कर रहा है, कंस्पायर नहीं कर रहा है, नोइंगली फैसिलिटेट है। वैसे तो ये दृष्टांत एबेटमेंट के 107 का ऑफेंस देखेंगे तो वहाँ वो दृष्टांत है, पर जानबूझ के फैसिलिटेट कर रहा है, सहयोग दे रहा है, ये बात जो है इसमें स्पष्ट कर दी गई है ताकि कोई इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश ना रहे। किस चीज़ में? कमीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ये चीज़ें अगर वो कोई इंडिविजुअल क्राइम के लिए करता है, चोरी के लिए करता है अकेले, वो कहीं और जाएगा, और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए करता है तभी वो यहाँ इस सेक्शन में आएगा। और क्या है? अदरवाइज इंगेज इन एनी एक्ट प्रिपरेटरी टू एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ये एक बिल्कुल ही अलग प्रावधान किया गया है। प्रिपरेशन जो है आईपीसी में बहुत कम जगह दंडनीय है, बहुत ही कम जगह दंडनीय है, लेकिन यहाँ जो है एक प्रावधान कर दिया गया है, वन प्रोविजन हैज बीन मेड दैट डील्स विथ प्रिपरेशन ऑल्सो, दैट इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग। तो आप देखिए प्रिपरेशन एक स्टेप है, प्रिपरेशन के बाद जो है एबेटमेंट, अटेम्प्ट और कंस्पिरेसी आती है, पर प्रिपरेशन के लेवल पर ही इसको पनिश किया गया है। तो दिस इज जस्ट टू प्लग ऑल होल्स, टू पनिश द ऑफेंस एट एवरी लेवल। आप देखेंगे प्रिपरेशन के साथ आगे मेंबरशिप भी पनिशेबल की गई है। सो प्रिपरेशन इज ऑल्सो पनिशेबल, बट ऑलवेज टेक नोट डियर फ्रेंड्स, when we say that law punishes preparation, that does not mean कि कोई भी व्यक्ति के बारे में अटकलबाजी से हम कह देंगे क्या वो तैयारी कर रहा था, वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करना चाहता था। लॉ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस इनके लिए होने चाहिए कि हाँ सही में प्रिपरेटरी एक्टिविटी थी, क्योंकि प्रिपरेटरी एक्टिविटी क्या होती है, बहुत सारी प्रिपरेटरी एक्टिविटी ऐसी होती है जो इनोसेंट नेचर की होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कि मेरा मन है कि मैं कोई लूट करना चाहता हूँ, मैं बाहर चाकू खरीदने जाता हूँ, सब्जी काटने वाला चाकू खरीद के ले आता हूँ। अब सब्जी काटने वाला चाकू खरीद के जो लाते हैं वो एक इनोसेंट एक्टिविटी है, क्योंकि सब्जी खरीदने का चाकू कोई भी खरीद सकता है, उसकी तो दुकानें भी हैं, उसके लिए कोई लाइसेंस भी नहीं लेना है। वी नीड नॉट टेक एनी लाइसेंस, वी कैन टेक ए नाइफ, कम होम। सो जस्ट बिकॉज a knife is found in my possession does not make it a part of crime or organized crime. So something more is required. So जो लोग जो है, all those who are involved in this evidence collection,
all those who are involved in prosecution purposes, they must ensure प्रिपरेशन लिखने का ये मतलब नहीं है कि बस कोई चीज़ मिल गई. प्रिपरेशन लिखने का मतलब है उसको देखते ही पहली बार में लगे कि अरे नहीं 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 नहीं, ये तो गलत है, ये तो गलत है. जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको. एक आदमी के पास नकली सिक्का बनाने का कोई इंस्ट्रूमेंट मिलता है. अभी नकली सिक्का बनाने का जो इंस्ट्रूमेंट है, ये ऐसा नहीं है कि नॉर्मल इनोसेंट एक्टिविटी है. कौन रखता है? कोई नहीं रखता है. चाकू की तरह थोड़ी है कि चाकू रख लिया हमने या डंडा रख लिया हमने. तो ये अपने आप में एविडेंस हो गया कि इसने जो है नकली नोट नकली सिक्के ढालने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट अपने पास रखा हुआ है. तो ये प्रिपरेटरी एक्टिविटी पहली वाली तो पहली बार में पनिशेबल होगी. लेकिन दूसरी एक्टिविटी जिसमें केवल चाकू बरामद हुआ है, वो उसके लिए आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए. मान लीजिए कि चाकू के साथ साथ थोड़ा बढ़ जाते हैं. मान लीजिए उसके पास एक कंट्री मेड रिवॉल्वर मिल गया. चलो भाई, दैट इज ऑल्सो पनिशेबल अंडर आर्म्स एक्ट. डिफेंस विल फर्स्ट आर्गू सर इट में मैक्सिमम भी पनिशेबल अंडर आर्म्स एक्ट, जहाँ की 6 महीने साल भर तक का पनिशमेंट है. ये कोई ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है. कुछ ज़्यादा दिखाना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि वो भी गलत काम तो है ही, बट इट इज़ नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ समथिंग. ठीक है, क्योंकि गन का लाइसेंस तो आप ले सकते हैं. हाँ, तो वो जो है, इसलिए यहाँ पर क्या है. लेकिन अगर आप ये देख लें कि कोई ऐसी चीज़ है जो कि पर से गलत है, जैसे मैंने बताया कि ये सिक्के को जो है वो रखना किसी के हाथ में नहीं है. कोई हमारा, आप कोई लाइसेंस ले भी नहीं सकते उसका बहुत लिमिटेड लोग कर सकते हैं, बहुत लिमिटेड लोग कर सकते हैं. सो होल फोकस इज मे बी ऑल इलिस्ट्रेशंस आर नॉट अप्रोप्रिएट, बट प्रिपरेटरी जब कहते हैं, द प्रोसिक्यूशन एंड द एविडेंस कलेक्टर एंड द इन्वेस्टिगेटर्स, दे शुड बी एक्सट्रीमली केयरफुल दैट प्रिपरेटरी मीन्स हमें और स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए ताकि प्रिपरेशन का पूरा आप ठीक से कर सकें, वरना वो एक्विटल उसमें होना ही होना है. अब इसके मामले में बता दिया गया है कि जो एबेटमेंट करेगा उकसाएगा. ठीक है. अच्छा, एबेटमेंट भी एक बात ध्यान रखना है. एबेटमेंट इटसेल्फ इज ए क्राइम. दैट वे वो अपराध होना आवश्यक नहीं है. अपराध का होना आवश्यक नहीं है. जैसे मैंने जो है किसी ग्रुप में कह दिया, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में कह दिया कि जाओ तुम लोग जाके वहाँ पर लूट करके आ जाओ. वो लूट करने से मना कर देते हैं. कोई फर्क नहीं पड़ता, एबेटमेंट हो गया मेरी तरफ से. मैंने कहा किसी को जाओ उस आदमी को एक झापड़ मार के आ जाओ, उसने कहा नहीं सर हम नहीं झापड़ मारेंगे. कोई बात नहीं है, मेरी ओर से एबेटमेंट पूरा हो गया. ध्यान रखना है, एबेटमेंट के लिए इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड दैट द ऑफेंस बी कमिटेड. अगर ऑफेंस करेंगे तब तो भाई उसके अनुसार पनिशमेंट होगी, उसको ही पनिशमेंट होगी वो. ये तो, लेकिन मेरा ऑफेंस तो देन एंड देयर कंप्लीट हो गया. सिमिलरली कंस्पिरेसी, अगर हम किसी क्राइम को करने की कंस्पिरेसी करते हैं, अगर आप देखें जो इंडियन पेनल कोड देखें, तो वो देन एंड देयर पूरा हो जाता है. उसमें आगे बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती. तो ये ध्यान रखना है हमको. तो अब इसमें पनिशमेंट क्या है? 5 साल तक का मिनिमम पनिशमेंट है, जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक जाता है. देखिए कितना हार्श पनिशमेंट है. जजेस को बहुत डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि अगर कोई ऐसा बहुत गंभीर मामला है, आप 10 साल, 15 साल, 20 साल, यहाँ तक कि जीवन भर का कारावास भी दे सकते हैं. और एक बात ध्यान रखना है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट को लेकर कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि 14 साल का होता है या 20 साल का होता है. नहीं, बिल्कुल गलत जानकारी है. लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सीधा मतलब है जीवन भर के लिए जेल के अंदर रहना. सिंपल. हाँ, 14 साल के बाद सीआरपीसी में नियम है, या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है उसमें एक नियम है कि 14 साल के बाद जो व्यक्ति जेल के अंदर है उसके पास एक अवसर होता है कि वह सरकार से कहे कि मेरा चाल चलन अच्छा था, मेरा आचरण अच्छा था, इसलिए हमको रिहा किया जाए, रिहा करने के लिए हमको कंसीडर किया जाए. 14 साल के बाद वो कंसीडर किया जा सकता है अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट में है, जिसको सरकार मना कर सकती है. ज़्यादा सीरियस ऑफेंसेस है तो सरकार मना कर सकती है. लगता है बाहर जाके फिर परेशान करेगा या बहुत गड़बड़ मामला है इस आदमी का. तो बहुत सारे जो ऑफेंडर्स हैं 20-20, 22-22, 25-25 साल से जेल के अंदर है. ठीक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट उनको सजा मिली है, 14 साल में लेकर रिहा नहीं हो सकते वो. ठीक है,
तो ये मैं कह रहा था कि ये जरूर हमको ध्यान रखना चाहिए। और एक और बात की गई है, नॉट लेस देन 5 लाख रुपीज़, कम से कम 5 लाख रुपए तक का दंड होगा। जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में ये भी एक डिटरेंस है, ये भी एक डिटरेंस है कि 5 लाख तक का उनको दंड दिया जाएगा। ये हो गया इनकोइट ऑफेंस। इनकोइट का मतलब हो गया प्रारंभिक अपराध। अब आते हैं उसके 4 में, 111 भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 111 क्लॉज 4 में, ये हम मेंबरशिप क्राइम कहते हैं। मेंबरशिप क्राइम बस एक लाइन का बताया गया है, मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट क्या है हम लोगों ने देख लिया है। कौन है भाई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट? देखिए 111 के एक्सप्लेनेशन 1 में बता दिया गया है, 2 या 2 से ज़्यादा लोग हों, आइदर अकेले या ज्वाइंटली एक सिंडिकेट या गैंग बना ले जो कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी कर, तो लगातार चोरी करते रहते हैं, लगातार चोरी करते रहते हैं। एक ग्रुप बना लिया है उन्होंने, और आके अकेले करते हैं या ग्रुप में करते हैं, और 2 लोग हैं इसमें, तो ये जो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट है। तो अगर इस तरह के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट है कोई, हमें उसकी जानकारी है, हम उसको जानते हैं भी, उसके मेंबर बन जाते हैं, तो भले ही हम कुछ ना करें, मे बी आई हैव डन नथिंग, this must be taken care of by all of us, that a person who is a member but must be conscious member, unknowingly member बन गया है तो अलग बात है। तो जो पॉइंट हमें ध्यान रखने का है वो है, there is an organized crime syndicate as per illustration, as per explanation 1 of 111, I became member of that, then it is itself punishable, minimum punishment 5 years, मैक्सिमम पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड 5 लाख रुपए तक का जुर्माना, 5 लाख रुपीस का फाइन। बहुत हैवी फाइन किया गया है इसमें। पर कौन सी बात हमको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये नहीं है कि किसी भी जो है, मान लीजिए कि एक ग्रुप है, एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट जो है आजकल व्हाट्सएप ग्रुप में खूब चल रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप में कई बार चल रहा है, मेरे ग्रुप में मुझे भी कई बार ऐड कर दिया लोगों ने कि हम जो है वो शेयर ट्रेडिंग का टिप्स देंगे, बिना पूछे। कम से कम मैं बता रहा हूँ 10 बार मुझे ऐड किया उन्होंने। और ये है क्या और टिप आपको दे रहे हैं, आपको शेयर की ट्रेडिंग का, आप जो है यहाँ लगाइए, आप फॉरेन कंट्री में लगाइए, ठीक है, बिटकॉइन में लगाइए, ये सब है। उसमें 2-4 लोग होते हैं जो लगातार बोलते हैं कि आज मैंने इतना पैसा कमाया, आज तो बड़ा अच्छा हुआ, आज मैंने $200 कमा लिया। अब उसको देख देख कर आदमी के मन में लालच आता है। कई बार ऐसा होता है कि उनमें कुछ मिलता भी है उनको, और धीरे धीरे करके वो ट्रैप में आ जाते हैं। वो व्हाट्सएप ग्रुप पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट है। क्यों है उसको ध्यान से देखिए। क्या हो गया, 2 और 2 से ज़्यादा लोग हैं, अकेले कर रहे हैं या ज्वाइंटली कर रहे हैं, एक गैंग बना करके कॉन्टिन्यूसली अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहे हैं, धोखा देने की अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहे हैं। पर ये अनलॉफुल एक्टिविटी हमको साबित करनी पड़ेगी, ठीक है। हम क्या हुए हैं, हम उसके मेंबर बन गए, हमें नहीं पता है कि वो धोखा देने के लिए ग्रुप बना है। अब यहां पे ये सेक्शन लागू नहीं होगा, इस बात का ध्यान हम लोग सबको रखना है। ऐसा ना हो इनोसेंट आदमी को भी 5 लोग पकड़े गए, उस ग्रुप में हम भी थे, उस ग्रुप में आप भी थे, उनको ही पकड़ लिया। नो, हमें ये प्रूव करना होगा कि जो आदमी मेंबर बना है उसको जानकारी थी कि ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट है। कैसे साबित करेंगे, ये हमारा काम है। स्टेट की मशीनरी बहुत ही व्यापक होती है, बहुत बड़ी होती है, इंटेलिजेंस होता है, लोग होते हैं, उनके पास इनपुट्स होते हैं, वो उनको पता करना है कि कैसे हमको जानकारी थी कि नहीं थी, वी मस्ट नो इट। तो ये प्रूव हमको करना पड़ेगा कि ये मेंबर हम थे। बस अगर हम मेंबर थे, उसके बाद ये साबित करने की जरूरत नहीं कि हमने कुछ किया कि नहीं किया। हो सकता है हमने कुछ ना किया हो, हम खाली जो है समझिए इंडिकेट करके हाथ लगा दिया, ठप्पा लगा दिया, हमने खाली एक इमोजी डाल दी। मैं कह रहा हूं वो भी नहीं डाला हमने, बट आई वाज अवेयर ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट, माई ड्यूटी इज टू लीव द ग्रुप एज अर्ली एज पॉसिबल। उस ग्रुप में रहकर नहीं बोल सकते कहीं भैया हम तो खाली मेंबर हैं, हमने कुछ किया नहीं है। अगर आप मेंबर हैं, मान लीजिए कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप में, मान लीजिए एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में किसी ने कहा कि अरे भाई ये तो इसके बारे में बहुत सुनते रहते हैं, इस तरह का बहुत धोखा भी हो रहा है, और पहले मेरे साथ धोखा हुआ है, और यही लोग थे धोखा किए थे, ये 3-4 लोगों का नाम है। अब आपके पास आने लगा कि हाँ इनके साथ धोखा हुआ है, ये ग्रुप धोखे ग्रुप है। उस व्यक्ति को रिमूव कर दिया उन्होंने। फिर किसी के साथ वैसी बातें की, आपने थोड़ा ऑनलाइन सर्च किया, आपको लगा कि नहीं ये ग्रुप गलत है। जैसे आपको मालूम चला ग्रुप गलत है,
अभी भी आप मेंबर हैं, नाउ 111 क्लॉज 4 कम्स इन पिक्चर, इवन इफ यू डू नथिंग, बट to establish that I have the knowledge that it is an organized crime syndicate group, this is the prosecution needs to prove. इसके बिना किसी को पकड़ लेना ये पूरी तरह से गलत है कि भैया हमने सबको पकड़ लिया एक साथ। ये हो रहा है आजकल कि भाई व्हाट्सएप ग्रुप है, कोई फेसबुक ग्रुप है, कोई और ग्रुप है, मान लीजिए 6-7 लोगों का ग्रुप है, हम जाते हैं वहाँ जाते हैं, सिगरेट पीते हैं। सिगरेट पीना इमोरल हो सकता है, कई लोग पसंद नहीं करते हैं, एक्सेप्टेड है। शराब पीते हैं हम जाके, एक्सेप्टेड है। कुछ लोग इमोरल मानते हैं। हमें ये नहीं पता है कि उस 7 लोगों में से 6 लोग एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट का निर्माण कर रहे हैं। हम जाते हैं, खाते पीते हैं, मस्ती करते हैं, बाद में पकड़े जाते हैं, हम भी पकड़े जाते हैं। ये साबित करना पड़ेगा कि मैं जानता था कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप का सिंडिकेट है, नहीं तो अल्टीमेटली एक्विटल हो जाएगा। और एक्विटल हो जाता है 2 साल, 10 साल, 5 साल बाद से एक्विटल हो जाता है, सारी मेहनत बेकार हो जाती है। ठीक है, तो ये मेंबर है। अब इसमें एक बात का ध्यान रखना, जो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं वो चाहे तो अभी एक केस पढ़ सकते हैं। इस केस का नाम है अरूप भुइयां वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम, 2023 में डिसाइड हुआ है केस। अरूप भुइयां वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम जो केस है वो वास्तव में था टाडा वाले पे, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट जो है उसके अंदर मेंबरशिप जो है क्राइम था। उसमें यही आर्गू किया गया था कि इस आदमी को पकड़ा गया है, इस आदमी ने कहा कि साहब मैं जो है इस ग्रुप में, मैं इनको जानता तो था कि ये लोग जो है टेररिस्ट ग्रुप के लोग हैं, लेकिन मैं तो ऐसे ही मिलने जाता था दोस्त होने के नाते, मैं तो उनकी मीटिंग में जाता था, कुछ करता नहीं था, मैं बैठा रहता था। कोर्ट ने कहा नो, इट इज वी द स्टेट वांट्स टू स्टॉप दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी एट द वेरी आउटसेट। आप कुछ करते हो नहीं करते हो अलग बात है, करेंगे तो अलग से ऑफेंस है। आप केवल इतना ही बताएं कि आप जानते थे कि नहीं कि ये ग्रुप एक टेररिस्ट ग्रुप है, ये ग्रुप एक अनलॉफुल ग्रुप है। इफ द आंसर इज यस, यू आर मेंबर, यू विल बी पनिश्ड। तो अथॉरिटी अगर चाहिए कि मेंबर होने के लिए केवल मेंबरशिप ही चाहिए कोई, क्योंकि कई बार आर्गू किया गया, कोर्ट में आर्गूमेंट हो रहा है कि साहब ये आदमी तो मेंबर था, जानता था पर कुछ किया नहीं। आप सीधे आप अरूप भुइयां अथॉरिटी बताइए कि अरूप भुइयां में ये बात कोर्ट ने 2023 में डिसाइड कर दी है कि कोई काम करना जरूरी नहीं है मेंबर्स का, लेकिन मेंबर को जानकारी, मेंबर मस्ट बी ए कॉन्शियस मेंबर। ठीक है। और 2020 में मैंने इस पर एक आर्टिकल भी एक लिखा था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस में आया है। अगर आप में से कुछ इंटरेस्टेड होंगे तो उसको भी सर्च कर सकते हैं, चाहेंगे तो मैं भी आपको भेज दूंगा अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो ये हो गया मेंबरशिप क्राइम को लेकर। इसका मैं ज़्यादा इंफेसिस इसलिए दे रहा हूँ कि ये जो सोशल मीडिया है, इस सोशल मीडिया में ये काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, अब उनको जमा करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, वो ग्रुप बना के काम कर रहे हैं, उसमें से कुछ इनोसेंट लोगों को रख लेते हैं, कुछ जो है लोग उसमें गैंग वाले लोग होते हैं, इनोसेंट लोग बेचारे पकड़े जा रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि जो इनोसेंट आदमी पकड़ा गया है उसको अलग करना है, उसको इसका पार्ट नहीं बने, क्योंकि वो मेंबर नहीं है इसका। हाँ, उसने बेनिफिट ले लिया है तो फिर प्रोसीड ऑफ क्राइम हो गया है तो अब एक अलग बात होती है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए 5 देखते हैं। 5 क्या कहता है? Whoever intentionally 111 का 5 ऑर्गेनाइज क्राइम 111 मैं जो है 5 से 10 मिनट में खत्म करूंगा, फिर आपसे प्रश्न लूंगा मैं। Whoever intentionally harbors or conceals any person who has committed the offense of organized crime। एक व्यक्ति ने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किया हुआ है, FIR दर्ज है, कोर्ट में मामला चल रहा है, कुछ भी है, उसको हम जानबूझ के अपने घर में शरण दे दिए हैं। जानबूझ के, ध्यान रखना है, इंटेंशनली वर्ड यूज हुआ है इसमें। ठीक है, जानबूझ के उसको शरण दे दिए हैं या उसको छिपा रहे हैं। शरण देने का काम तो नॉर्मल हो सकता है। मान लीजिए मैंने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कोई किया है और आपसे दोस्ती हो गई और भाग करके मैं आपके घर गया, बोला भाई साहब मैं जो है 2 दिन 1 दिन आपके साथ रहूंगा, यहाँ रहना, यहाँ एक काम है, घूमने फिरने आए हैं। आपको क्या पता, बोले अनुराग द्वीप तो भाई बहुत ही ये रेस्पेक्टेड जगह से है, आपको तो पता नहीं है। सेक्शन 1115 में ध्यान रखना है, वरना जैसे 1114 में मैंने बताया था कि इनोसेंट आदमी पकड़ा जा सकता है, 115 में भी इनोसेंट आदमी को पकड़ना हमारा काम नहीं है। हमारा काम उसको पकड़ना है जिसने इंटेंशनली किया है। अब आप बोलेंगे इंटेंशन कैसे साबित करेंगे? हमारा काम है, कैसे करेंगे इसकी पूरी ट्रेनिंग है, एविडेंस एक्ट इस पर है, इस पर ट्रेनिंग अलग से हो सकती है, इंटेंशन कैसे साबित करेंगे। ठीक है, लेकिन जब तक इंटेंशन साबित नहीं करेंगे हम गिरफ्तार करते हैं, हम ह्यूमन राइट का वायलेशन करते हैं।
और अल्टीमेटली जो है हम जो है लॉ को सर्व नहीं कर रहे हैं, लॉ के अगेंस्ट में जा रहे हैं। तो इंटेंशनली उसको वो हार्बर करता है, रोक रखता है, छिपाता है उस आदमी को, तो ऐसे मामले में वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करता है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में वो सेक्शन 5 में 111 का 5 में वो करता है। उसके लिए सज़ा क्या है? कम से कम 3 साल की सज़ा होगी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक उसको हो सकता है, और उसकी फ़ाइन जो है 5 लाख रुपए तक उसमें फ़ाइन होगी। इसमें एक बचाव दिया गया है कि जो पति पत्नी के बीच में है, इवन इफ पता है, पति को या पत्नी को पता है कि मेरे पति ने अपराध किया है, तो पत्नी उसको शरण दे सकती है, बचा सकती है। और पति को पता है कि मेरी पत्नी इसमें इन्वॉल्व है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में, तो पति अगर शरण देता है तो यहाँ वो उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलेगा, 1115 के ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलेगा। ही विल नॉट बी प्रोसिक्यूटेड इन 1115। दिस इज ए टाइप ऑफ, आप कह सकते हैं, एक फैमिली वैल्यूज़ की बात हो रही है। देखिए लॉ जो है हमारा जो है कैसे जो है गलत चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहा है। हमें पता है मेरी वाइफ इन्वॉल्व है, पर मैं उसको हार्बर कर रहा हूँ, छिपा भी रहा हूँ, ठीक है ना, छिपा भी रहा हूँ, जानबूझ के कर रहा हूँ, पर लॉ प्रोटेक्ट कर रहा है। क्यों? फैमिली वैल्यूज़ जो है, क्योंकि फैमिली में हस्बैंड और वाइफ जो है वो एक अलग इकाई है, इसलिए ऐसा किया गया। लेकिन माता पिता बचाव करते हैं, बेटा बचाता है, उनको कोई बचाव नहीं है। पति पत्नी को ज़्यादा वैल्यू दिया गया है। पर इसका मतलब नहीं है कि अब जो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करें, और क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं पकड़ा जाएगा तो कहीं और नहीं पकड़ा जाएगा, ठीक है ना। एबेटमेंट का ऑफेंस है, ध्यान रखिए आप, एबेटमेंट के ऑफेंस में डाल सकते हैं आप। यहाँ हार्बर और कंसीलमेंट नहीं करेंगे, एबेटमेंट में डालेंगे आप उसको, तो कॉन्स्पिरेसी में डाल सकते हैं, कुछ और मामले में डाल सकते हैं, फैसिलिटेट करने में डाल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नहीं डाल सकते हैं, लेकिन हार्बर और कंसीलमेंट अगर कर रहा है वो, तो ये माना जाता है कि पति पत्नी तो साथ रहेंगे ही, और पति अगर कहीं से भाग के आएगा तो पत्नी के पास रहेगा और आके बोलेगा कि भाई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में किए हैं और अब आप यहीं रहें, तो पत्नी अगर ऐसा रोकती है तो उसके ऊपर मुकदमा नहीं चलेगा। 1115 हो गया। 1116 जो है क्या कहता है? 1116 क्या कहता है? प्रोसीड्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। और नाउ प्रोसीड्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कोई नई बात नहीं रही। प्रोसीड्स को लेकर पीएमएलए में भी है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में भी है। प्रोसीड्स को लेकर हमने देखा कि जो 2000 का कन्वेंशन है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कन्वेंशन, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कन्वेंशन, उसमें भी है। और प्रोसीड्स को लेकर मकोका में भी है, प्रोसीड्स को लेकर और भी कई इनैक्टमेंट है, उसमें भी है। प्रोसीड्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से जो भी पैदा होगा, जो भी मिलेगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, सब बहुत बढ़िया किया है। लिखा है सेक्शन 6 में 111 क्लॉज 6, नॉट सेक्शन 6, 111 क्लॉज 6 में, एक व्यक्ति हु पजेसेस एनी प्रॉपर्टी, पजेस एनी प्रॉपर्टी में ध्यान रखना है। होल्डिंग ए प्रॉपर्टी इज नॉट पजेशन। संजय दत्त केस सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड हुआ है विद द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इन 1994। ध्यान रखिए, ये इसलिए कि प्रॉपर्टी पजेशन किसी के पजेशन में मिल जाती है, हम तुरंत उसको कर लेते हैं, पजेशन कर लेंगे, फॉरफिट कर लेंगे, वो अलग बात है, पर पजेशन साबित नहीं कर पाएंगे। क्यों? जब तक संजय दत्त केस को फॉलो नहीं करेंगे। संजय दत्त केस में क्या करना है हुआ है कि ये साबित करना होगा कि उसको जानकारी थी कि प्रॉपर्टी ऐसे आई है। मान लीजिए मैंने एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किया और अपने बेटे को, अपने बेटी को उस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का प्रोड्यूस के रूप में एक मकान दे दिया। उनको कोई जानकारी नहीं है कहाँ से आया। वो सोच रहे हैं कि मेरे पिताजी तो बड़े ही रेस्पेक्टेबल आदमी है और रेस्पेक्टेबल तरीके से पैसा कमाए होंगे, हमने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से कमाया है, उनके पास वो प्रॉपर्टी है। जब तक उनको ये जानकारी नहीं होगी, वो प्रोसीड्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं होगा। ध्यान रखना है, मतलब उसके लिए उनका प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। प्रॉपर्टी तो जब्त होगी, ध्यान रखना, प्रॉपर्टी जब्त होगी, पर मेरे बेटे का, मेरी बेटी का, मेरे वाइफ का, मेरी मदर का, तब तक प्रोसिक्यूशन इसके अंदर नहीं चला सकते जब तक उनको ये जानकारी नहीं है कि ये पाप की उपज है, ये अपराध की उपज है। ठीक है, इसलिए पजेशन में लिखा नहीं है, लेकिन छिपा हुआ है पजेशन में कि वहाँ पर मेंसरिया होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। इसलिए यहाँ भी हमको ध्यान रखना, अगर ऐसा करते हैं, कानून का वायलेशन करते हैं, हमको साबित करना होगा कि उसको जानकारी थी। पजेस एनी प्रॉपर्टी, एनी प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी भाई? विच इज डेराइव्ड और ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या है हम लोगों ने पहले देख लिया है, सेक्शन 1 में, 111 सेक्शन 1 में देख लिया है हम लोग क्या क्या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के द्वारा जो प्रॉपर्टी हमें मिलती है, या एनी प्रॉपर्टी
derived or obtained from proceeds of any organized crime. हमने जो है किडनैपिंग की 10 लोगों ने मिलके, उससे 50 लाख रुपए लिए, 50 लाख में से जो है 20 लाख रुपए मैंने लिए, 20 लाख में से कोई और चीज़ ले लिया, उसके लेकर कोई नई चीज़ ले लिया हमने, कोई बात नहीं है, प्रोसीड्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है वो भी। तो या तो वो प्रॉपर्टी जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से आई हो या उसके प्रोसीड से आई हो, वो सब जो है प्रॉपर्टी अगर पोजीशन में है मेरे, आई एम पनिशेबल। विच हैज़ बीन एक्वायर्ड थ्रू ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इसके लिए 3 साल मिनिमम सजा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का, आजीवन कारावास भी हो सकता है, कम से कम 2 लाख का इसमें जुर्माना होगा। ये ध्यान रखना। तो इसमें मेन पॉइंट क्या है, पोजीशन जो है कॉन्शियस होना चाहिए, इसको भी हमें ध्यान रखना है। 7वां जो है आखिरी जो पॉइंट है हमारा, वो ये है, इफ एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ ए मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट इज और एट एनी टाइम हैज बीन पोजेशन ऑफ ए मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी विच ही कैन नॉट सेटिस्फैक्टरीली अकाउंट फॉर। ये लिया गया एक्चुअली इनकम टैक्स एक्ट में, इस तरह के प्रोविजंस है इनकम टैक्स एक्ट में, अब तो और भी कई एक्ट में आ गए हैं ये प्रोविजन। इफ एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ ए मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट, मेरा जो है क्या है कि मेरा रसोइया है, मेरा ड्राइवर है। आपको एग्जांपल देता हूँ, जयललिता जी चीफ मिनिस्टर थी तमिलनाडु की, उनके जो वे थे रसोइया थे, ड्राइवर थे, उनके पास से 4-4, 5-5 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल रही थी। प्रॉपर्टी रखने का कोई ऑफेंस नहीं है, प्रॉपर्टी 5 करोड़ की हो सकती है। और उनसे पूछा भाई आपके प्रॉपर्टी कहाँ से आई, बोले भाई ये तो हमारे दोस्तों ने दे दिया, सब लोग गिफ्ट किया मुझे, कोई गिफ्ट कर सकता है, गिफ्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। उनसे पूछा कि भाई आखिर प्रॉपर्टी आपको क्यों गिफ्ट कर रहा है कोई, केवल कहने से नहीं होगा कि साहब गिफ्ट कर दिया। अरे आपको कोई आदमी गिफ्ट क्यों करेगा? हम लोग शादी में जाते हैं, किसी के इसमें शादी में 500 देते हैं, 1000 देते हैं, थोड़ा क्लोज रिलेशनशिप है 10,000 देते हैं। हम कितने लोगों की शादी में जाके 10 लाख रुपए देते हैं बताइए? एक आदमी जिससे आपका कोई रिलेशनशिप नहीं, जयललिता से ही पूछा गया, कहा गया आपको इतने महंगे महंगे गिफ्ट लोगों ने दिया है, ये क्यों दिया है? बोले सर दोस्त हैं गिफ्ट दिया। नहीं, सेटिस्फैक्टरीली अकाउंट। कोर्ट ने बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन किया है, कहा है दिस इज नॉट ए सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन कि साहब दोस्त ने दिया, और कुछ कारण बताइए। आपका बहुत क्लोज रिलेटिव है, माता पिता है, दे सकते हैं 10 लाख, 50 लाख दे सकते हैं माता पिता, भाई बहन भी दे सकते हैं। पर मेरा कोई बहुत दूर का दोस्त है, वो अचानक आकर के मुझे जो है 50 लाख रुपया का मुझे हमारे अकाउंट में डाल देता है। हो सकता है उसका गिफ्ट टैक्स भी दे दिया हो उसने, हो सकता है हमने इनकम टैक्स में दिखा दिया हो। ध्यान रखिए, ये हो सकता है कि इनकम टैक्स में इसको दिखाया गया हो, जयललिता केस में दिखाया गया था, जयललिता केस में कि ये मैंने सारा, उन्होंने कहा मेरे इनकम टैक्स में सबने वो कर दिया है उसको कि भाई इनकम टैक्स दिखाया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, दैट इज स्टिल ए क्राइम। जयललिता को जेल हुई, जेल में ही डेथ हो गई उनकी। तो सेटिस्फैक्टरीली अकाउंट, अगर आप पकड़ते हैं किसी को और प्रॉपर्टी कहां से आई उसका एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं दे पा रहा है, सेक्शन 1117 कम्स इन पिक्चर। लेकिन बाकी चीज साबित करनी पड़ेगी कि ऑन बिहाफ ऑफ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ऐसा कर रहा था कोई व्यक्ति, ये तो साबित करना होगा। इंडिविजुअल अगर ऐसा कर रहा है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में जाएगा, इंडिविजुअल अगर ऐसा कर रहा है तो मनी लॉन्ड्रिंग में जा सकता है, इंडिविजुअल कर रहा है कोई और मामले में जाएगा। लेकिन अगर हमें इसमें लाना है तो हमें इसको ऐसा करना पड़ेगा। हमें लगता है समय निकल गया है। लास्ट जो है बस पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में बताना चाहता हूँ, मैंने पहले ही अंतर कर दिया है दोस्तों। पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मतलब वो है इस तरह के क्राइम। देखिए क्या है, ए पर्सन जो विच इज हु इज ए मेंबर ऑफ ए ग्रुप और गैंग क्या करता है, चोरी करता है, स्नैचिंग करता है, चीटिंग करता है, अनऑथराइज सेलिंग ऑफ टिकट करता है। अनऑथराइज सेलिंग ऑफ टिकट, भाई टिकट खरीदा और कहीं से बेच दिया, लेकिन ग्रुप मेंबर है वो, गैंग है। हमने खरीदा, हमने बेच दिया, वो अलग बात होती है, पर ग्रुप का गैंग का मेंबर नहीं है हम। अनऑथराइज सेलिंग ऑफ टिकट, अनऑथराइज बेटिंग और गैम्बलिंग, अनऑथराइज ध्यान रखना है क्योंकि बेटिंग और गैम्बलिंग ऑथराइज्ड भी है। सेलिंग ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर, जो है क्वेश्चन पेपर आप सेल कर देते हैं, नीट में हुआ है आजकल और बहुत सारे में हुआ है, एनटीए में हुआ और कई जगह हुआ है। एनी अदर सिमिलर एक्ट, ये पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ये देखिए वायलेंस का एलिमेंट नहीं है, लेकिन आप देखिए पनिशमेंट कम नहीं है, कम से कम 1 साल पनिशमेंट है, मैक्सिमम 7 साल पनिशमेंट है। अब हम लास्ट जो पॉइंट में डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये
कि जब मकोका लगा हुआ है, जब हमारे पास स्टेट का इनैक्टमेंट है, तो इस ऑफेंस को डालने की क्या ज़रूरत पड़ी भारतीय न्याय संहिता में? इसके दो तीन फायदे भी हैं। पहला फायदा क्या है कि जो इस जो ये है, क्या कहते हैं, जो एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड को पहला फायदा ये है कि दो तरह के क्रिमिनल हैं। एक तो प्रोफेशनल क्रिमिनल है और एक फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है। जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है उसके ऊपर ये लॉ लागू होना चाहिए। इस लॉ के लागू होने में क्या होगा, बेल आसानी से मिलेगा। पीएमएलए की तरह का बेल नहीं है, या जो है मकोका की तरह बेल नहीं है। बेल का प्रोविजन कौन सा लागू होगा, सीआरपीसी का लागू होगा, तो आसानी से बेल मिल जाएगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई इनोसेंट आदमी भी पकड़ा जाए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास कोई पेपर पड़ा हुआ है, कोई एग्जामिनेशन पेपर पड़ा हुआ है, मेरे सीनियर भी हैं, मेरे जूनियर भी हैं, हम लोग सब ने मिल करके सील किया, एक उसमें डाल दिया, एक मतलब लॉकर में डाल दिया, उसमें साइन कर दिया हम तीन लोगों ने, मेरे बॉस ने भी, मेरे जूनियर ने भी, मैंने भी। मैंने किसी सेटिंग कर रखी है कि भैया 10 लाख रुपए लो, 20 लाख रुपए लो, और ये पेपर जो है, पेपर का क्वेश्चन आपको फोटो कॉपी करके दे देंगे। मेरे साथ के दो लोगों को बिल्कुल नहीं पता, वो सोचते भाई इतना इज्जतदार आदमी ये सब काम नहीं करेगा, लेकिन मैं कर रहा हूँ ये काम। लालच में आ गया, ध्यान में आ गया ना, लालच सब चीज़ की जड़ है, पाप है। तो मैं लालच में आ गया। अब जो है पुलिस ने पकड़ा, पुलिस ने कहा भाई ये किसकी जिम्मेदारी थी ये लॉकर में? बोले 3 लोगों की जिम्मेदारी थी, बॉस की, अनुरागदीप की, और ये तीसरा आदमी। पुलिस तो तीनों को पकड़ेगी, ओबियस है भाई, तीनों की जिम्मेदारी तीनों पकड़ेगी। अब वो 2 लोग जो है साथ में, वो जो है इनोसेंट है। अब उनको बेल जल्दी मिलनी चाहिए। विद द पासेज ऑफ टाइम जब पता चलेगा कि अरे भाई जो पैसा है उन लोग दोनों को नहीं मिला है, खाली मुझे मिला है, तो ओबियसली उनको छोड़ देंगे वो, क्योंकि पैसे कोई ट्रांजेक्शन है, प्रोसीड नहीं दिख रहा है, प्रोसीड ऑफ क्राइम नहीं दिख रहा है, उनको छोड़ देंगे। तो मेरा ये कहना है कि ये लॉ आने का एक फ़ायदा ये हुआ है कि जो इनोसेंट लोग हैं वो अब मकोका में नहीं जाएंगे। तो मकोका में तो भी 6-6 महीने, साल भर तक फिर उसको बेल ही नहीं मिलेगी। ठीक है। अब इसका एडवांटेज हो गया है एक एक्यूज्ड के लिए, खास करके जो नया एक्यूज्ड है, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है या इनोसेंट है, उसके ऊपर ये लॉ लागू होना चाहिए। और बाकी बहुत जो प्रोफेशनल क्रिमिनल है, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल है, उसके ऊपर जो लॉ लागू होगा वो लॉ लागू होगा, मकोका का लॉ होगा और स्टेट लॉ लागू होगा। ये एक एडवांटेज विशेष हो गया है और पुलिस को इसका ठीक से यूज़ करना चाहिए। तो मैं इतना ही कहूँगा इसमें कि जो है इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का जो है नए जो भारतीय न्याय संहिता में आया है, ये एक अच्छा कदम है, लेकिन पुलिस अधिकारियों को इसको बहुत ध्यान से यूज़ करना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये दुरुपयोग का साधन बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, समय काफ़ी निकल गया है, लेकिन आई एम ओपन टू एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। थैंक यू अगेन। कोई कुछ बोल रहे हैं लेकिन आवाज़ नहीं आ रही है ठीक से। Good evening, Anurag sir.